میں مدرسے کی جانب سے شکریہ ادا کرنے کے لیے مدرسہ مفتاح العلوم کے ناظم و محتمم مخدوم گرامی قدر جناب الحاج حافظ محمد فرقان صاحب دامت فیوزہم العالیہ سے درخواست کرتے ہیں تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ معزز حاضرین، دور و دراز سے علاقے سے آئے ہوئے مہمانان کرام اور قابل قدر حضرات علماء کرام، آج کی یہ دینی تقریر جس کا عنوان رسم اجرا، جس میں آپ حضرات تمام صعوبات کو برداشت فرما کر مدرسہ مفتاح العلوم میں تشریف لائے۔ جیسا کہ ابھی حضرت مولانا عبد الجبار صاحب مدث اللہ العالی نے فرمایا کہ کوئی کتاب جب لکھی جاتی ہے تو ذہن و دماغ کا پوری طور سے حاضر رہنا ضروری ہے۔ ہماری آپ کی گرفت بول چال میں نہیں ہوتی، ہم آپ سے گفتگو کریں، ہمارے الفاظ درست نہ ہوں، الفاظ گڑبڑ ہوں تو ہماری گرفت نہیں ہوگی۔ البتہ ہمارے لیے اگر کوئی ہمارا پیر و مرشد ہے، اصلاح کے طور پر بعد میں اس کا ازالہ تو کر سکتا ہے، لیکن گرفت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ تحریری کام ایسا ہے کہ اگر اس میں ذرا سے بھی غلطی ہو گئی تو پھر وہ ہمارے لیے مصیبت بنتی ہے۔ حضرت مولانا عبد الجبار صاحب نے بتایا کہ دماغ کا ہر وقت حاضر رہنا۔ بہرحال یہ چمنستانی فہمی ہے، یعنی حضرت مولانا علی حسن صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس مدرسے میں 1979 میں تشریف لائے۔ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد اس کی بنیاد کو محلہ انصار میدان کے بہت سے رفقاؤں نے مل کر رکھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں جو روح پھونکنے والے وہ شخصیت حضرت مولانا علی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ جان توڑ کر محنت کی، محنت کے بعد میں مدرسے کے اندر ایک طریقے سے رونق پیدا ہوئی، طلبہ کی تعداد روز بروز بڑھتی گئی اور کثیر تعداد میں حفاظ اور علماء آج الحمدللہ اس مدرسے کے پڑھے ہوئے تیار ہیں، اور اسٹیج پر بھی بہت سارے علماء کرام، حفاظ کرام جن کو براہ راست حضرت مولانا علی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا۔ اسی چمنستان فہمی کے مفتی جنید صاحب بھی ہیں، اسی چمنستان فہمی کے مولانا مبین الحق صاحب دامت برکاتہ ہیں، اسی چمنستان فہمی کے مولانا سفیان صاحب ہیں، مولانا حبیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دوست اور ساتھی، ہم سبق ساتھی حافظ محمد جاوید صاحب دامت برکاتہ وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ کن کا نام لیا جائے، یہ اللہ کا فضل ہے اور آپ حضرات کی دعاؤں کا صلہ ہے کہ مدرسہ الحمدللہ شاندار چل رہا ہے۔ آپ حضرات دعا فرماتے رہے کہ اللہ رب العالمین اس مدرسے کی نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ یہ کتاب جو کلیات حضرت شاہ فضل رحمہ رحمۃ اللہ علیہ جس کو مفتی جنید نے ترتیب دیا ہے، اس میں کرامات کا بھی تذکرہ ہے، حضرت شاہ صاحب کی زندگی کا بھی تذکرہ ہے، آپ شریعت کے کتنے متبع تھے اس کا بھی تذکرہ ہے، علماء کرام سے بھی سنتے رہتے ہیں، کرامات کا کتنا صدور ہوتا تھا، کتنے بڑے آپ کشاف تھے،
बहुत ज्यादा आपको कश्फ और इल्हाम हुआ करता था। एक बुजुर्ग साहब, बड़े बुजुर्ग, उनके दिल में एक इश्तियाक पैदा हुआ। हजरत शाह साहब का नाम सुना कि एक शख्सियत गंज मुरादाबाद के अंदर जो कुतुब अब्दालियत की हामिल है, बुजुर्ग शख्सियत है, दूर दराज का सफर था, चलने फिरने का इतना इंतजाम नहीं था, जितने वसाइल आज मौजूद हैं ये वसाइल मौजूद नहीं थे। दिल के अंदर इरादा पैदा हुआ कि किसी तरीके से हजरत से मुलाकात की जाए। बड़े बुजुर्ग, मुलाकात का इश्तियाक और दाइया कल्ब के अंदर पैदा हुआ। इतना दाइया पैदा हुआ, इतना दाइया पैदा हुआ कि आपने इरादा कर दिया कि फला दिन चलकर हजरत शाह फजल रहमा रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात करनी है। जोश पैदा हो गया, मुलाकात के लिए घर से निकल गए और जहन के अंदर ख्याली पुलाव, ख्याली चीजें बड़ी अजीब किस्म की होती हैं। तसव्वुरात की दुनिया अजीब किस्म की है। हजरत का चेहरा देखा नहीं, हजरत की शबाहत से वाकिफ नहीं, हजरत के जिस्म से वाकिफ नहीं, हजरत के मामलात से वाकिफ नहीं, लेकिन जज्बा इतना कि हजरत साहब के पास जाएंगे और मुलाकात होगी और हजरत की शबाहत ऐसी होगी, हजरत का जुब्बा ऐसा होगा, हजरत का कुब्बा ऐसा होगा, हजरत की टोपी ऐसी होगी, हजरत का लिबास ऐसा होगा, हजरत बदन के एतबार से ऐसे होंगे। दुनिया एक तसव्वुर, कल्ब के अंदर तरह तरह के तसव्वुरात की दुनिया में मुस्तग़रक़। वो वक्त आया कि आप गंज मुरादाबाद तशरीफ लाए और मस्जिद के अंदर जब दाखिल हुए, बड़ी मस्जिद के अंदर जब दाखिल हुए, तो चूंकि हजरत शाह फजल रहमा मुत्तबा सुन्नत थे, बहुत बड़े मुत्तबा सुन्नत थे, एक एक चीज पर आप सुन्नत के ऊपर अमल किया करते थे। आप तशरीफ लाए, मस्जिद के अंदर कदम रखा, सुन्नत के मुत्तबा आप भी थे, आप भी शरीयत के ताबेदारी करते थे, लेकिन ज़ौक़ और इश्तियाक और गायत दर्जा मोहब्बत के जोश में इतना मुनहमिक मुस्तग़रक़ हुए कि जब मस्जिद के अंदर कदम रखा तो बजाय इसके कि दायां कदम आप मस्जिद के अंदर रखते, बायां कदम धोखे से भूले से पड़ गया तो हजरत शाह साहब फजल रहमा रहमतुल्लाह अलैह सफील के ऊपर बैठे हुए थे और ढीला खूब जुब्बा पहने हुए थे। ये वाक़या हजरत मौलाना अली हसन साहब हमारे मुहतरम वालिदे मुहतरम बताया करते थे, तलबा में भी तस्करा करते थे और अपने खिताब में भी तस्करा किया करते थे। हजरत मौलाना फजल रहमा रहमतुल्लाह अलैह सफील के ऊपर बैठे हुए हैं, ढीला जुब्बा पहने हुए हैं, बड़ी बड़ी आस्तीनें हैं, दो पतिया टोपी लगाए हुए हैं और टोपी के कोने दाएं बाएं हैं, जिस तरीके से हम लगाए इस तरीके से बैठे हुए थे। हजरत जो बुजुर्ग तशरीफ लाए मुलाकात के लिए, बजाय इसके कि दायां कदम अंदर रखते, बायां कदम अंदर रख दिया। हजरत शाह साहब जोश में उठे, क्योंकि सुन्नत के खिलाफ अमल देखा और तेजी से कहा, खींचो 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 खींचो। क्या खींचे, कुछ समझ नहीं आई, बात पल्ले नहीं पड़ी कि ये क्या कहना चाहते हैं, तो आप पूरा जिस्म अपना पीछे कर लिया और अब भी बात समझ में नहीं आई। कुछ वक्फे के बाद पीछे हटे और थोड़ा सा जिस्म के अंदर जब तमानियत पैदा हुई तो फिर आगे बढ़े और फिर उल्टा कदम मस्जिद के अंदर रखा। हजरत शाह साहब सफील से उठते हैं और जिस जगह के ऊपर चप्पलें उतारी जाती हैं, जहां से मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ जाता है, वहां पर आकर और आपका बायां कदम चूंकि मस्जिद के अंदर दाखिल किया था उसको पीछे करते हैं और दायां कदम मस्जिद के अंदर दाखिल करते हैं। सुन्नत को तर्क नहीं किया। हजरत शाह का कमालात और अभी बात खत्म नहीं। आने वाले बुजुर्ग के दिल में यह ख्याल पैदा हुआ, क्योंकि हजरत की शबाहत कभी देखी नहीं और आज के दौर के तरीके से मोबाइलों के ऊपर फोटो कशी की इतनी तस्वीर नहीं थी, इसका वजूद ही नहीं था, तो चेहरा कभी देखते। अभी बात खत्म नहीं हुई, दायां कदम दाखिल होकर अंदर तशरीफ ले गए। बुजुर्ग साहब के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि कितना सख्त खादिम रख लिया गया, कितना सख्त खादिम रख लिया गया। अभी ये नहीं पता कि ये शाह साहब यही है,
अंदर दाखिल हुए, वजू फरमाया, नमाज की जगह के ऊपर तशरीफ ले गए। जब नमाज का वक्त आया तो हजरत मौलाना फजल रहमा साहब रहमतुल्लाह अलैह जब मुसल्ले के ऊपर तशरीफ ले गए, तब बुजुर्ग को पता चला कि यही हजरत मौलाना फजल रहमा रहमतुल्लाह अलैह। ये एक मामूली से हकीकत आपको बताई गई, पूरी किताब इसी से भरी हुई है। बहरहाल मुफ्ती जुनैद साहब ने मलफूजात को इकट्ठा किया, दीगर किताबों को इकट्ठा किया, उसकी तरतीब दी, वो आपके सामने मौजूद है। इंशाअल्लाह बुजुर्गान दीन के मुक़द्दस हाथों से उसका अभी इजरा होगा। अल्लाह ताला हमारी आपकी आमद को बेपनाह कबूल और मकबूल फरमाए। तमाम उलमाए किराम जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है, हम अपनी जानिब से मदरसा मिफ्ताहुल उलूम के तमाम असातिज़ा किराम की जानिब से आपका खैर मक़दम करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह पाक आपके आने को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा।